Good evening, students. Today we are going to discuss electrolysis of copper sulfate solution using platinum electrode. Right? Here you can see the copper sulfate solutions will contain Cu2 plus ion and SO4 2 minus ion. So cation is Cu2 plus ion and anion is SO4 2 minus ion. And here platinum is an inert electrode. It will not react with the electrolyte present in the solutions. Solutions में जो electrolyte present है उससे कोई reactions नहीं करेगा. ठीक है? Now what are the probable reactions at anode and cathode? The probable reactions at cathode are first Cu2 plus ion can take 2 electron and gets converted into Cu, and the second, the reduction of water will give H2 and OH minus ion. Now the question is which reactions will actually take place at cathode? Cathode पे इस दोनों में से कौन सा reactions होगा? You can see the reduction potential value from the electrochemical series. The reduction potential for first reaction is plus 0.34 volt and for the second it is minus 0.83. Right? It means which has higher value of standard reaction potential? First reactions. So the reduction of Cu2 plus ion will take place preferably. Okay? The reduction of Cu2 plus ion will take place at the cathode in preference to the reduction of water, because the standard reaction potential of first reaction is more than the standard reaction potential of second. आपको मालूम है cathodic reactions will be one with higher value of reduction potential. It means what will the product at the cathode? The cathodic product will be Cu. Cu will be deposited on the cathode. Cathode पे क्या होगा बेटा? Cu2 plus ion जो है यहाँ पे deposit होगा cathode. Now, what are the probable reactions at anode? You can see which ions will move towards anode. Definitely anions, SO4 2 minus ion. So what reactions are possible at anode? Let us see. At anode, the probable reactions at anodes are probable reactions at anode are probable reactions at anode are, you can see, first 2SO4 2 minus ion gives H2O8 2 minus ion plus 2 electron. Okay, and if you see the oxidation potential, but the oxidation potential is not given, the reduction potential is given H2O8 2 minus ion plus 2 electron, it gives 2SO4 2 minus ion, and its reduction potential is plus 2.05. So here it will be minus 2.05 volt. It will be the standard oxidation potential for this reaction will be minus 2.05, minus 2.05 volt. Right? The second will be, what will be the second one? The oxidation of water. 2H2O gives half O2, 2H2O है ना? No. 2H2O will give O2 plus 4H plus ion plus 4 electron. If you are taking 2H2O, it will give 4H plus ion plus 4 electron, and the standard oxidation potential for the second reaction will be minus 1.23 volt. We have already discussed about it. This is minus 1.23 volt. So you can see the oxidation potential of water is higher than the oxidation potential of what? Sulfate ion. So oxidation of water will take place preferably, and the anodic product will be O2. ठीक है ना? Anodic product क्या हो जाएगा बेटा? O2. क्यों? Since oxidation potential of water is higher, right? The
oxygen gas will be obtained at anode, will be obtained at anode. तो यहां पे क्लियर हो गया बेटा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of copper sulfate using platinum as electrode, the copper is deposited at the cathode and oxygen gas is liberated at the anode. The conclusion is, during the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate using platinum electrode, copper is deposited at cathode, and oxygen gas is liberated at anode. राइट, यही हो जाएगा. कैथोड पे क्या होगा बेटा, कॉपर जमा होगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, O2 गैस लिबरेट. राइट, अब हम लोग आ जाते हैं यहीं पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. देखो ना, जब कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेंगे तब क्या होगा, यहां पे भी when we take copper as an electrode, means anode and cathode, they are made up of copper bead. Then what will the reaction at cathode and anode? At cathode only these two reactions are possible. यहां पे यही दो रिएक्शंस पॉसिबल होगा, और ये दोनों में कौन सा होगा, पहला वाला होगा. क्यों पहला वाला होगा, तो सबको मालूम है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इससे. अब व्हाट आर द प्रोबेबल रिएक्शंस एट एनोड, एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस यहां पॉसिबल है, जरा सा ध्यान देना इसके ऊपर. व्हाट रिएक्शंस आर पॉसिबल्स एट एनोड, एनोड पे क्या क्या रिएक्शन संभव है, इसको हम लोग देखते हैं यहां ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, एक रिएक्शन बढ़ जाएगा. यहां पे एक तो रिएक्शन हम लोग देखे थे, क्या देखे थे बेटा, बोलो. एक देखे थे 2SO4 2 माइनस आयन गिव्स S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था बोलो, -2.05. अभी तुरंत देखे हम लोग वोल्ट. दूसरा रिएक्शन क्या देखे थे, दूसरा देखे थे वाटर का ऑक्सीडेशन. वाटर का ऑक्सीडेशन जब होता है तो क्या होता है, H2O गिव्स हाफ O2 प्लस 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था, -1.23 वोल्ट. ठीक है, याद रखना वाटर का -1.23 वोल्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और तीसरा जो होगा यहां पे एक और रिएक्शन होगा, कॉपर जो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, कॉपर कैन ऑल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन इन दिस केस, एंड कॉपर आफ्टर ऑक्सीडेशन विल गिव Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ फॉर दिस रिएक्शन विल बी, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसका, प्लस 0.34. इसका ठीक उल्टा रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगा, -0.34 वोल्ट. ये तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, थर्ड का, इसका वैल्यू ज्यादा है, यानी ये रिएक्शन होगा, ये दोनों रिएक्शंस नहीं होगा. तो हम यहां पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, कॉपर डिसॉल्व्स एट द एनोड, कॉपर डिसॉल्व्स एट द एनोड. एनोड पे क्या होगा बेटा, कॉपर डिसॉल्व होगा. यहां से जो है कॉपर मेटल, ये कॉपर का बना हुआ है ना, ये भी कॉपर का बना हुआ है, यहां से कॉपर मेटल क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेगा, इट इंटर्स इनटू द सॉल्यूशन. और जो Cu2 प्लस आयन सॉल्यूशन में है वो कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर. मतलब इसका वेट धीरे धीरे घटेगा और इसका वेट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा. ठीक है ना, तो कॉपर डिसॉल्व्स एट द एनोड and is deposited on the cathode. देखो बेटा 10th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल. ठीक है ना,
कॉपर मेटल का रिफाइनिंग कैसे करते हैं? जो कॉपर मेटल हमको एक्सट्रैक्शन के बाद मिलता है, कॉपर किससे मिलेगा? कॉपर ओर का एक्सट्रैक्शन से कॉपर मेटल मिला, लेकिन वो कॉपर 100% प्योर नहीं होता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए यही मेथड अपनाते हैं, ठीक है ना। इम्प्योर कॉपर का हम लोग एनोड ले लेते हैं और प्योर कॉपर मेटल का कैथोड ले लेते हैं, और उसको इसी तरह से कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो क्या होता है बेटा, यहां से आप देखोगे, यहां से क्या होगा, प्योर कॉपर जो है Cu2 प्लस आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाने लगेगा, और जो इंप्योरिटी होगा वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा, जिसको हम लोग एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड मड, ठीक है ना। इंप्योरिटी नीचे बैठेगा, कॉपर आयन इसमें डिसॉल्व करेगा, और ये कॉपर आयन फिर क्या होगा, कॉपर के फॉर्म में इस प्योर कॉपर के ऊपर में डिपोजिट होते रहेगा। इस तरह से इस इम्प्योर कॉपर से हमारा प्योर कॉपर यहाँ पे डिपोजिट होने लगेगा, प्योर कॉपर मेटल के ऊपर में, और इंप्योरिटी नीचे में बैठने लगेगा, जिसको बोलते हैं एनोड मड। एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है ना। 10th में था ये चीज। तो इज इट क्लियर? आगे आप उस तरह से सिल्वर वगैरह का देख सकते हो अपने से, ठीक है। एक चीज, एक दो बात जो हम बोलना चाहेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम दिखाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो।